We discussed the hypothesis, the statement of the theorem yesterday. What it states is, if T from domain to Y is a linear operator where X and Y are norm spaces, then T is continuous if and only if bounded. And second thing was, if T is continuous at single point, then it is continuous, right? So that means continuity implies boundedness, and conversely, similarly, pointwise continuous implies continuous and vice versa. So to prove the first part, first we assume that first the case is T is equals to 0. So T is equals to 0, then the statement is trivial, continuous and boundedness, right? So we assume that T is not equals to 0, right? So if T is not equals to 0, then norm T is also not equals to 0, right? So what first we do is we suppose that T is continuous. Now what we have to prove is that T is bounded. To show that T is bounded, what we have to show that is norm of Tx is less than equals to C times norm of X. Matlab there exists a constant real number, right? Now, let us suppose that T is continuous. If T is continuous, then T is continuous at a single point also, right? So let X naught that belongs to the domain be that arbitrary point. Then T is continuous at C naught. Then T is continuous at X naught, which implies, the definition of continuity implies, for each epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that this norm of Tx minus Tx naught is less than equals to epsilon for all x in the domain which satisfy this condition, right? Norm of x minus x naught is less than equals to delta. This equation 1 holds when T is continuous at x naught, right? Now, we take another point in the domain not equals to 0, right? We take another non-zero point in the domain and set x as x naught plus delta times y upon norm y. What would happen now is x minus x naught now would be delta times y upon norm y. So when we take norm of x minus x naught, it would be nothing but delta, right? So this condition will hold for the condition in first. This condition, norm of x minus x naught is less than equals to delta. This condition now holds for x, and hence this condition, norm of Tx minus Tx naught is less than equals to epsilon. This will hold since T was continuous. So therefore by 1 we have that norm of Tx minus Tx naught is less than epsilon, right? We name it as equation 2. Now we consider Tx minus Tx naught, which can be written as T of x minus x naught since T is linear, right? And x minus x naught is nothing but delta y upon norm y, right? And T is linear, so delta upon norm of y की जो term है वो बाहर आ जाएगी. So this would be equal to delta upon norm y into norm of Ty, right? Since T is linear. Now, this is less than epsilon using 2. 2 states that this norm of Tx minus Tx naught is less than epsilon whenever x minus x naught is less than equals to delta, right? So x minus x naught तो हमारे पास आ गया equals to delta, and what we were considering is norm of Tx minus Tx naught. We got this equals to this, right? And by equation 2 we know that this is less than epsilon, so automatically this would be less than epsilon, right? So delta upon norm of y into norm of Ty is less than epsilon using 2, which implies norm of Ty is less than epsilon by delta into norm y, right? Just cross multiplying. Then we set epsilon by delta is equals to k. Both are real numbers, both are non-zero, right? So we set epsilon by delta is equals to k. So what we get is norm of Ty is less than equals to k times norm y, where k is a real number. That means T is bounded, right? It was easy. Now,
Conversely, what we have to do is, we have to assume that t is bounded and prove that t is continuous. So to prove t is continuous, what we'll take is, we'll take an x0 point arbitrary, right? Any arbitrary point in the domain. We will prove that t is continuous at that point. Now since that x0 was arbitrary, we will get that t is continuous, right? So to prove this, what we do is, let epsilon greater than 0 be arbitrary and x0 be in any point in the domain. Then tx minus tx naught. Continuity के लिए हमें यही चाहिए, norm of tx minus tx naught. This can be written as norm of t times x minus x naught. Now, this is less than equals to this term because t is a bounded function, right? T is bounded की definition क्या होती है? Norm of ty is less than equals to norm t into norm y, right? So यहाँ पे हमारे पास y क्या है? x minus x naught. So therefore, norm of t times x, t of x minus x naught is less than equals to norm t into norm of x minus x naught. This is by the definition of boundedness, right? And this term is less than epsilon because this holds, right? So this is less than epsilon if norm of t into norm of x minus x naught is less than epsilon. So यहाँ से क्या आया? Norm of x minus x naught is less than epsilon by norm t. यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में epsilon by epsilon के डिनोमिनेटर में t लिख रहे हैं because t हमने नॉन जीरो अज्यूम किया था, तो norm of t नॉन जीरो होगा, right? So what we have is, norm of tx minus tx naught is less than epsilon. This is less than epsilon if this condition holds, right? If norm of x minus x naught is less than epsilon upon norm of t. So what we do is, we choose delta is equals to this thing, epsilon upon norm t, and we will be done. Then what we have is, norm of x minus x naught less than delta implies norm of tx minus tx naught is less than epsilon and x was in the domain, right? So that means t is continuous at x naught. Continuity की definition आ गई, and x naught was arbitrary, so t is continuous. Any doubt in this proof? Okay, so let's proceed further. So part B, what we had to prove was, if t is continuous at a single point, then t is continuous, right? So from part A, we have just proved that if x naught belonging to the domain was an arbitrary point, then if t is continuous as x naught, then we have that t is continuous. So we'll use the same proof here, that from part A, what we have is that if t is continuous in a single point, then t is bounded on dt and t is continuous on dt's, right? So part B is trivially from part A. Any doubt in this proof? Chalo then, let's proceed. Next. So next is a corollary, which is by continuity and null spaces. So what is state is, if t is a bounded linear operator, what we are given is, t is a bounded linear operator and xy are norm spaces, then first is, if xn sequence converges to x, implies txn converges to tx, right? So any sequence converging to x, which implies t of that sequence which converges to t of x, right? So first is sequential criteria and second is the null space is closed, right? So first we will prove that if t is a bounded linear operator, then this holds. Now what we'll do is, we are given t is bounded, right? So from previous theorem, we get that bounded implies continuity. So t would be continuous and t is continuous. हमें सिर्फ ये prove करना है कि sequential criteria continuity का ही part होता है, right? T is continuous implies sequential criteria will hold. So that is what we have to prove. Now, so to prove, we are given that t is linear and bounded, right? So norm of txn minus tx would be
norm of t times xn minus x, linearity से, right? And this would be less than equals to norm of t into norm of xn minus x. This is from boundedness, right? So linearity यहाँ use हुई, boundedness यहाँ use हुई. Now this would tend to 0 as n tends to infinity. Why? Because xn converges to x as n tending to infinity, right? If xn converges to x, that means norm of xn minus x would converge to 0, and hence what we have is norm of txn minus tx would converge to 0 as n tending to infinity, right? And that means norm of txn converges to tx, right? So what we have done is, if t is a linear and bounded operator, then if a sequence converges to a point, then t of that sequence, right, would converge to t of that point. Sequential criteria. Second, what we had to prove is null space is closed, right? So what we do is, closeness के लिए हम क्या prove करते हैं generally? Closure में एक element लेते हैं and then prove करते हैं कि वो उसमें set में belong करेगा, right? So the same thing we do is, let x belongings to closure be any point, and x belongings to closure है, so that means there would exist a sequence xn, right? क्लोजर की डेफिनेशन होती है, हम यूज कर सकते हैं, इफ x belongs to closure and t closure, then there exists a sequence xn in nt such that xn converges to x as n tending to infinity, right? Now as xn converges to x as n tending to infinity, and from previous part what we have is, if this holds, then txn would converge to tx, right, as n tending to infinity, and that implies tx is equals to limit of txn, right? Now since xn was in nt for all n, right, we had a sequence xn in nt, so xn is in nt, which implies t of xn would be 0. Null space की definition, t of xn is equals to 0, that means limit of txn would be 0, and hence tx would be 0. And if tx is equals to 0, that means x would belong to null space. So what we have is, x belonging to nt closure implies x belongs to nt. And since this x point was arbitrary, what we have is, nt closure is contained as nt, right? Reverse inequality तो होल्ड हमेशा ही करती है, बट यहाँ पे हमें क्लोजनेस के लिए यही दिखाना था, एंटी क्लोजर इज कंटेन्ड इन एंटी एंड हेंस एंटी इज क्लोज्ड. Easy enough. So next part is, this is a remark, but this has approved also. This would be done in TUT either today or Monday or next TUT, that the range of a bounded linear operator may not be closed, and this is important for further sections also. Range of a bounded linear operator may not be closed. हमने यहाँ पे देखा कि null space bounded linear operator का closed होगा, but range close नहीं होगी, right? इसका example भी है आगे, so और proof भी है, so we'll do that. After that we have some examples, that if t2 from x to y and t1 are two bounded linear operators, then this holds. Norm of t1 t2 is less than equals to norm of t1 into norm of t2, right? So they are not commutative over multiplication, right? So what we do is, we take norm of t1 t2. Norm of t1 t2 को क्या लिख सकते हैं? Supremum norm of x is equals to 1, norm of t1 t2 x, right? Now since t1 is bounded linear operator, we are given, right? So this term can be written as, since t1 is bounded, we can write it as, this is less than equals to, this term is less than equals to
T1 norm of T1 into supremum of T2x, and similarly T2 is bounded, or we can use the definition of this norm of T2, right? So this is nothing but norm of T2. Supremum of norm of T2x when norm x is equals to 1 is nothing but norm of T2. So what we have is norm of T1 T2 is less than equals to norm of T into norm of T2. This was very easy. Similarly, you have a proof for norm of generalized proof. If we are given a bounded linear operator, then norm of t to the power n would be less than equals to norm of t to the power n. जनरलाइजेशन है इसी का, इसमें t1 और t2 को इक्वल ले लो, सो एंड इंडक्शन लगा दो, सेम प्रोसेस आएगा. सो उसका प्रूफ जस्ट सेम है. नॉर्म ऑफ tn को क्या लिख सकते हैं, t इंटू टी एन माइनस वन, इसके ऊपर प्रीवियस रिजल्ट लगाया, राइट. सिमिलरली tn माइनस टू आ जाएगा, उसके ऊपर प्रीवियस रिजल्ट लगाते चलेंगे. सो बाय इंडक्शन या कंटिन्यूइंग इन दिस वे, इंडक्शन तो नहीं कह सकते, कंटिन्यूइंग दिस वे सारे स्टेप्स को मिला के वी विल गेट दिस, राइट. इट वाज वेरी इजी. नाउ वी हैव सम न्यू concepts. We are given operators T1 and T2. When are they said to be equal, right? So the operators are equal if they have some same domain, first point, right? So that is domain of T1 is equals to domain of T2 and their images is same, that is T1x is equals to T2x for all x. So two operators are equal if they have same domain and same image for an element for all x, right? So ये हर एक कंडीशन ये x के लिए, हर एक x के लिए होल्ड करेगी. T1x is equals to T2x. Now second definition is what is the restriction of an operator. Restriction mapping हमने पढ़ी हुई है, right? So similarly we have restriction of operator T. We define the restriction to be a subset of the domain, right? Domain का subset होना चाहिए is denoted by T restricted to B. And इसका definition क्या होती है? T restricted to B is from B to Y such that the restriction T restriction B at x is equals to Tx for all x belonging to B. यही होती है restriction की, general restriction mapping की भी definition, right? That is, if we restrict to a set, then this Tbx is equals to Tx for all the elements in the restricted set, right? So this is restriction definition. Similarly, we have extension definition. Right? Yeah? Yeah, sure. Yeah, okay. So, is it clear till now? Or do I need to repeat any step? Okay, let's. Yeah, sure. So, for the equal operators, what we had was, we had to have same domain and T1x is equals to T2x for all elements in the domain, right? Similarly, we had restriction that if T is, yeah, कौन से सेट? नहीं 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 नहीं, हमें एवरी एक्स के लिए ही सेम चाहिए, रेंज सेट इक्वल होने से नहीं होगा. इमेज सेम चाहिए फॉर एवरी एक्स, राइट. सिमिलरली रेस्ट्रिक्शन मैपिंग जैसे होती है वैसे रेस्ट्रिक्शन ऑपरेटर डिफाइन किया है, ठीक है. तो रेस्ट्रिक्शन इज डिनोटेड बाय टी restricted to the set. जिस सेट के ऊपर जिस सेट को हमने रिस्ट्रिक्ट किया है, dt को रिस्ट्रिक्ट किया है b के ऊपर, so this is t over b and is defined as tbx is equals to tx for all x belonging to b, right? यहाँ पे कोडोमेन सेम है y and y, t and tb की, right? So image पूरे y में जा सकती है, we have just restricted the domain.
Similarly, we have the concept of extension. Yeah. हाँ. हाँ. नहीं, सिर्फ 0 को 0 पे मैप कर रहा है, क्या पता 1 को पे कर रहा हो. 1 की डेफिनेशन क्या होती है? राइट. सो मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है, fx1 है हमारे पास 1 एंड fx2 भी हमारे पास 1 है. राइट. इमेज सेम है लेकिन प्री इमेज डिफरेंट है. राइट. सो दिस कैन होल्ड. ऐसे तो फिर t 0 तो 0 हर एक ऑपरेटर के लिए होता है, तो हर एक ऑपरेटर 1 1 थोड़ी कह सकते हैं हम. चलो नेक्स्ट डेफिनेशन, एक्सटेंशन. जैसे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन की थी, रेस्ट्रिक्शन में क्या लिया था, सबसेट लिया था एक डोमेन का. राइट. हम एक्सटेंशन में क्या कर रहे हैं, अगर t हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ अ t टू ए सेट m, हमारे पास डोमेन में तो मैपिंग होती ही है, यहाँ पे लिखी हुई है, शायद नहीं लिखा हुआ. t जो मैप है हमारे पास, ये dt से तो होता ही है. राइट. सो एक्सटेंशन होने का मतलब क्या है, हमारे पास एक ऐसा सबसेट हो, एक ऐसा सेट होगा जो इस dt को कंटेन करता होगा. राइट. सो हमने क्या लिया, एक सेट लिया m जो कि dt को कंटेन करता है. एक सेट m जो कि dt को कंटेन करता है. सो एक्सटेंशन क्या होगी इस t मैपिंग की, t इज एक्सटेंशन ऑपरेटर, t टिल्डा से हम अगर डिनोट करते हैं तो t टिल्डा विल बी फ्रॉम m टू y. एंड एक्सटेंशन होने का क्या मतलब है कि एटलीस्ट dt सेट पे तो सेम मैपिंग होगा, dt और m के बीच में जो सेट बचेगा m माइनस dt, उस पे हम कुछ नहीं कह सकते. राइट. एक्सटेंशन का मतलब तो यही होता है एक्सटेंशन या रेस्ट्रिक्शन का, कि ये जो सेट है इसके ऊपर तो इक्वल है, बाकी हम कह नहीं सकते, बाकी जो सेट बचेगा. सिमिलरली एक्सटेंशन में भी यही है. सो अगर हम एक सुपर सेट ले रहे हैं dt का, दैट मीन्स एक एक्सटेंशन मैपिंग होगी t टिल्डा फ्रॉम m टू y. t टिल्डा वुड बी m टू y सच दैट डोमेन के ऊपर सेम होगा. राइट. t टिल्डा रिस्ट्रिक्टेड टू डोमेन dt वुड बी इक्वल्स टू t. जो सेट बचेगा m माइनस dt, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते. सिमिलरली इसमें रिस्ट्रिक्शन वाले केस में जो dt माइनस b सेट बचा था उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते थे. राइट. The extension, the concept of restriction or extension, is it clear? Or do I need to repeat it? Okay, so let's do one thing. Right, so we have three things. Next is this. Sorry. We have dt. Then we have this set B. Right? And next what we have is a set M. So this set is B, this is dt, and this set is M.
सो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग जो होगी वो dt को पूरी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करती है एक सबसेट पे, और एक्सटेंशन मैपिंग जो है वो dt को एक्सटेंड करेगी एक सुपरसेट m के ऊपर, राइट। सो ये जो मैपिंग्स है ये है t एंड t टिल्डा। अब क्लियर हुआ ये रिस्ट्रिक्शन का और एक्सटेंशन का डिफरेंस? ओके चलो नेक्स्ट इज, हमने अभी जब डेफिनेशन में ये लिख रहे हैं कि t टिल्डा एट dt इज इक्वल्स टू t, इसका मतलब क्या है? t टिल्डा x इज इक्वल्स टू tx फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू dt। इसी कंसेप्ट के लिए हमने इक्वल ऑपरेटर्स डिफाइन किए थे, राइट, फॉर रिस्ट्रिक्शन और एक्सटेंशन के लिए। अब हमारे पास बारी आती है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, राइट, एक्सटेंशन या रिस्ट्रिक्शन हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका पार्ट ये है कि अगर dt एक प्रॉपर सबसेट है एक m सेट का, राइट, इफ dt इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सबसेट ऑफ m, राइट, यहाँ पे हमने बनाया है dt इज अ सबसेट ऑफ m, then a given t has many extension of practical interest। so हमारा मतलब कहने का ये है कि dt से m के ऊपर जाने वाली जरूरी नहीं है एक ये जो एक्सटेंशन हमने t टिल्डा लिखी है ये यूनिक हो, राइट। बहुत सारी एक्सटेंशंस जा सकती हैं जो इस सेट के ऊपर तो एलिमेंट, इस सेट के ऊपर तो इमेजेस सेम दे एंड बाकी सेट्स के ऊपर बाकी जो सेट बचा है उसके ऊपर अलग इमेजेस थे, राइट। जैसे हमने पहले टी टिल्डा को डिफाइन किया, टी अगर डोमेन में है, टी टिल्डा को हमने डिफाइन किया, टी टिल्डा को मैं यहाँ पे टी स्टार से डिनोट कर रही हूँ, राइट। सो टी टिल्डा को पहले हमने डिफाइन किया, टी अगर डोमेन में है, एक्स इन डोमेन, राइट, एंड वन अदरवाइज, राइट। सो ये भी एक एक्सटेंशन हो गई टी की, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हम वन की जगह पे अगर टू लिख देते तो वो एक अनदर एक्सटेंशन हो जाती। डोमेन पे तो एलिमेंट की इमेज सेम ही आएगी ना, लेकिन इमेजेस अलग अलग हो जाएंगी, मैपिंग डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे मैंने वन की जगह टू लिख दिया, तो ये टी स्टार मैपिंग डिफरेंट हो गई, लेकिन डोमेन के ऊपर सेम है, राइट। सो इसका कहने का मतलब क्या था कि जरूरी नहीं है कि एक्सटेंशंस यूनिक हो। एक्सटेंशन यहाँ पे हमने दो एक्सटेंशन डिफाइन करी, ये और एक ये, दोनों की दोनों डिफरेंट है एंड दोनों की दोनों एक्सटेंशंस है, राइट। सो देयरफॉर dt अगर कोई प्रॉपर सबसेट है m का, सो फॉर अ गिवन t देयर कैन बी मेनी एक्सटेंशंस। हमारे पास प्रैक्टिकल इंटरेस्ट की कौन सी एक्सटेंशंस होंगी जो कि लिनियरिटी और बाउंडेडनेस को प्रिजर्व करती हैं। सो वो एक्सटेंशन हम कैसे फाइंड आउट करें, वो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, राइट, कि कौन कौन सी ऐसी एक्सटेंशंस हैं जो लिनियरिटी और एटलीस्ट बाउंडेडनेस को प्रिजर्व कर रही है। सो उसके लिए जो नेक्स्ट थ्योरम है दिस इज दिस। ये क्लियर हुआ रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सटेंशन? ओके, सो द नेक्स्ट थ्योरम स्टेट दैट द थ्योरम की जो name है that is bounded linear extension theorem, and it states that if t is a bounded linear operator, right, so we are given t is bounded and linear where dt lies in a normed space x and y is a Banach space, we are given a Banach space, then t has an extension t tilde from dt to y where t tilde is also a bounded linear operator and this norm is same। तो थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारे पास एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है जिसकी डोमेन नॉर्म स्पेस में है एंड कोडोमेन उसकी एक बनाक स्पेस है, तो जो एक्सटेंशन आएगी dt टू y, dt क्लोजर है ये, सॉरी, इफ यू कैन सी dt क्लोजर टू y, then that extension would be a bounded linear operator, right। तो इसको हमें क्या करना है इसमें थ्योरम के लिए, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्रूव कि t के पास एक एक्सटेंशन है t टिल्डा, राइट,
जो टी क्लोजर से y में जाती है। सेकेंड थिंग हमें प्रूव करनी है कि वो जो है वो बाउंडेड होगी, लीनियर होगी, एंड नॉर्म वुड बी दिस, नॉर्म ऑफ दिस। सो हमें यहाँ पे 4 चीजें प्रूव करनी है। इट हैज एन एक्सटेंशन, it is bounded, it is linear, and norm is this, right? So let us prove first part, that is it has an extension from dt closure to y. अब हमें dt closure दिया हुआ है, so the first intuition should be what we take is we take an point x belonging to dt closure, and that would imply there exists a sequence xn in dt such that xn converges to x. This is we all know, right? Now T is bounded linear operator. T is bounded, that means T is continuous, right? We'll use this also. First thing is norm of Txn minus Txm we are considering. Y जो है Banach space है, so we will be using the concept of Cauchy sequences. Now T of xn minus T of xm would be nothing but T of xn minus m linear है and T bounded है, so this can be written as norm of T into norm of xn minus xm, right? Now xn converges to x, मतलब xn जो है एक converging sequence थी, so therefore xn minus xm जो है that would tends to 0 as nm tends to infinity. Convergence implies Cauchy, right? So यहाँ पे हमने वो concept use किया है कि xn converges to x था and convergent implies Cauchy, therefore this norm of xn minus xm would tend to 0 as nm tends to infinity. यहाँ से क्या आया, that T of xn एक Cauchy sequence है y में, right? और y हमारे पास क्या गिवन था, Banach space, that means y is complete, y complete है and Txn एक Cauchy sequence है y में, that implies Txn converges in y, right? And Txn converges implies we have a point y belongs to y which is equals to limit of Txn, right? Is it clear till equation 1? Okay. So next what we do is we define an operator T tilde, right, by T tilde of x is equals to y. T tilde कहाँ से कहाँ तक है, domain of T closure to y, right? हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो हम T tilde डिफाइन कर रहे हैं, ये T tilde ये एक्चुअल में एक्सटेंशन है T की, राइट? तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एक ऑपरेटर डिफाइन करेंगे T tilde, हम एग्जिस्टेंस भी तो प्रूव करनी है कि हम ये ऑपरेटर डिफाइन कर रहे हैं, एंड ये जो है इसको हम बाद में प्रूव करेंगे अभी कि ये एक एक्सटेंशन है। सो T tilde जो है ऑपरेटर हमने डिफाइन किया एज T tilde of x is equals to y, एंड y क्या था, लिमिट ऑफ Txn, राइट? सो हमने T tilde ऑपरेटर एक्चुअली क्या डिफाइन किया है, T tilde of x is equals to limit n tending to infinity T of xn. That means हमें यहाँ पे dt क्लोजर की जरूरत कहाँ पड़ी, dt क्लोजर की जरूरत हमें कहाँ पड़ी, नाउ dt क्लोजर में पॉइंट था तो उसमें सीक्वेंस कन्वर्ट कर रही थी xn टू x, सो हमने ऑपरेटर क्या डिफाइन किया है कि T of xn की जो लिमिट है वो T tilde of x होनी चाहिए, राइट? वही ऑपरेटर हमने डिफाइन किया है। नाउ इसके बाद हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट थिंग वी हैव टू प्रूव इस कि ये जो T tilde है ये यूनिकली डिफाइंड है, ऐसा नहीं है कि कोई और सीक्वेंस लेंगे तो ये T tilde की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, राइट? कोई भी सीक्वेंस लेंगे तो वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी वही इसकी डेफिनेशन आएगी। So first we have to prove is T is uniquely defined at every x belonging to dt.
किसी भी x के लिए सेम इमेजेस नहीं है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करेंगे कि हम दो सीक्वेंसेस लेते हैं xn में, एक xn सीक्वेंस ली, एक zn सीक्वेंस ली, राइट। मान लिया xn कन्वर्ज कर रही है x के ऊपर और zn कन्वर्ज कर रही है x के ऊपर, दोनों सीक्वेंसेस माना हमने x के ऊपर कन्वर्ज कर रही है। हमें क्या दिखाना था कि this choice of t tilde is independent of a particular choice of a sequence, right? So हम जरूर कोई चॉइस लेंगे, कोई दो सीक्वेंसेस हमने ली जो कि x के ऊपर कन्वर्ज कर रहे हैं, तो भी हम दिखा देंगे कि जो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने कौन सी सब सीक्वेंसेस ली है, फर्क किससे पड़ रहा है कि वो जो सीक्वेंस है वो x के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, राइट। सो व्हाट वी हैव इज, हमने दो सीक्वेंसेस ली xn और zn जो कि दोनों की दोनों x को कन्वर्ज कर रही है। एंड नेक्स्ट हमने एक सीक्वेंस डिफाइन की vm बाय vm इज इक्वल्स टू x1 z1 x2 z2, राइट। ऑल्टरनेटिवली फर्स्ट एलिमेंट ऑफ xn देन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ zn, सो x1 z1 x2 z2 हमने इस सीक्वेंस को डिफाइन किया। तो लिमिट ऑफ vn क्या होगी, x ही होगी, क्योंकि xn सीक्वेंस zn सीक्वेंस दोनों की दोनों सीक्वेंसेस जो है x पे कन्वर्ज कर रही थी। सो vxn जो vm जो सीक्वेंस है वो x पे कन्वर्ज करेगी। इज इट क्लियर टिल नाउ? इज देयर एनी डाउट? कहाँ पे डाउट है वो तो बता दो। चलो लेट मी रिपीट नाउ। इक्वेशन 1 तक तो क्लियर है ना, दैट y इज इक्वल टू लिमिट t xn। ठीक है, सो उसके बाद हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक ऑपरेटर डिफाइन किया है t टिल्डा जो कि x को लेके जाता है y के ऊपर, एंड y क्या था, लिमिट ऑफ t xn। यहाँ पे हमने इस डेफिनेशन से क्या मिला है, इस डेफिनेशन से व्हाट वी हैव वाज, अगर xn सीक्वेंस जो है x के ऊपर कन्वर्ज कर रही थी, अगर xn सीक्वेंस x के ऊपर कन्वर्ज कर रही थी तो लिमिट ऑफ t xn t टिल्डा x की वैल्यू होनी चाहिए, राइट। दैट इज व्हाट वी आर प्रूविंग। यहाँ पे हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंस की क्या चीजें थी, एक सीक्वेंस xn एंड दिस पॉइंट x, राइट। सो फर्स्ट थिंग हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमने दो सीक्वेंसेस ली जो कि सेम पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, हमने दो सीक्वेंसेस ले ली xn और zn, राइट, जो कि दोनों की दोनों x पे कन्वर्ज कर रही है। सो क्या ऐसा हो सकता है कि ये t टिल्डा की जो डेफिनेशन है इसमें कोई चेंज आए, राइट। सो ऐसा नहीं हो रहा, हम यही प्रूव कर रहे हैं कि t टिल्डा इज यूनिकली डिफाइंड। यूनिकली डिफाइंड किसके लिए है, एट एवरी x बिलोंगिंग्स टू dt क्लोजर, राइट। इसका मतलब क्या है यूनिकली डिफाइन होने का, कि हम ये जो डेफिनेशन यूज कर रहे हैं ये वाली, दिस डेफिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पार्टिकुलर चॉइस ऑफ सीक्वेंस इन dt कन्वर्जिंग टू x। तो मतलब या तो हम xn ले, zn ले, yn ले, tn ले, कोई भी सीक्वेंस ले, सीक्वेंस अगर x को कन्वर्ज कर रही है तो लिमिट अगर उसकी लेंगे तो t टिल्डा x की जो वैल्यू है वो यूनिकली ही डिटरमाइन होगी, राइट। वी आर जस्ट स्टेटिंग दैट। सो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो इतना लिखा हुआ है दिस इज जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, हम क्यों कर रहे हैं, राइट। ये यूनिकली डिफाइन का मतलब क्या है। यूनिकली डिफाइन, यूनिक होने के लिए क्या करते हैं हम, जनरली दो सीक्वेंसेस लेते हैं एंड प्रूव कर देते हैं कि दोनों पे इमेज सेम आएगी, राइट। वही हम यहाँ पे करेंगे। हमने दो सीक्वेंसेस ली xn और zn जो कि दोनों की दोनों x को कन्वर्ज कर रही है, राइट। उनसे हमने एक सीक्वेंस बनाई vm, तो ये vm सीक्वेंस ऑटोमेटिकली कन्वर्ज करेगी x के ऊपर, राइट, क्योंकि सीक्वेंस दोनों xn और zn से बनी है और वो दोनों की दोनों सीक्वेंस जो है वो ऑलरेडी x को कन्वर्ज कर रही है।
सो Vm जो है वो x को कन्वर्ज कर रही है। यहां तक क्लियर हुआ? स्पीकअप, कहीं डाउट है तो बोलो। चलो आगे का बताते हैं, फिर शायद क्लियर हो जाए कुछ। ना Vm x को कन्वर्ज कर गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? TVm कन्वर्ज करेगा, since T is a bounded linear operator, right? एंड जो इसकी सबसीक्वेंसेस है Txn और Tzn of TVm must have the same limit. अगर एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो उसकी सारी सबसीक्वेंसेस की जो कन्वर्ज करेंगी और उनकी लिमिट सेम होंगी, राइट? तो हमने यहाँ पे प्रूव किया कि TVm जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, एंड TVm कन्वर्ज कर रहा है, दैट मीन्स इसकी सारी सबसीक्वेंसेस कन्वर्ज करेंगी और सेम लिमिट की होंगी। अब इसकी सबसीक्वेंसेस थी कौन सी? Txn और Tzn, दैट मीन्स Txn और Tzn कन्वर्ज कर रही है और उनकी लिमिट सेम है, राइट? सो दैट इम्प्लाइज this limit n tending to infinity T of xn and limit n tending to infinity T of zn same है, right? So T star T tilde x uniquely determined हो रहा है। uniquely determined तक क्लियर हुआ या नहीं? I guess नहीं हुआ। बोलो क्लियरली एक बार, नहीं हुआ तो फिर बताती हूँ। ओके चलो, नाउ यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि टी टिल्डा यूनिकली डिटरमाइन है, राइट? सो अब हम प्रूव करेंगे कि ये लीनियर है, बाउंडेड है एंड एक्सटेंशन है। अब लीनियरिटी तो हम प्रूव कर सकते हैं एक्सएन से। टी टिल्डा एक्स है क्या? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी एक्सएन। सो यहाँ पे अगर हम x प्लस वाई लेते हैं, कोई दो सीक्वेंस एक्सएन प्लस वाई एन, सो टी की लीनियरिटी से ब्रेकआउट होके वो लीनियर हो जाएगा क्लियरली। सो टी टिल्डा इज लीनियर, दैट वी हैव गॉट। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव इज सेकेंड थिंग, एक्सटेंशन प्रूव करना है। सो वो भी अगर x डोमेन में है, यहाँ पे क्या था, x हमने लिया था dt क्लोजर में, राइट? तो अगर x डोमेन में है देन ये ट्रिवियली होल्ड कर जाएगा, क्योंकि dt क्लोजर में हमने एक सीक्वेंस लिया था जो x को कन्वर्ज कर रहा था। अब हम क्या ले रहे हैं? डोमेन में ही सीक्वेंस ले रहे हैं जो कि खुद उस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। तो ये इसकी एक्सटेंशन तो है ही ना, अगर dt क्लोजर पे ये होल्ड कर रहा है तो dt पे तो इक्वल होगा, राइट? dt पे इक्वल है ना। xn एंड yn हमारे पास दो सीक्वेंसेस लेते हैं डोमेन में, अगर xn सीक्वेंस ले रहे हैं वो x के ऊपर कन्वर्ज कर रही है पॉइंट में ही। सो टी टिल्डा की वैल्यू डोमेन पे क्या होगी? लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस। हमने क्या बोला? हमने एक xn सीक्वेंस ली इन डोमेन, राइट? xn सीक्वेंस ली डोमेन में जो कि कन्वर्जेस टू x। इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट ऑफ xn जो आएगी x है, लिमिट ऑफ xn x है, एंड दिस इज इन dt, converges to x in dt, right? So limit of xn is equals to x in dt, and t tilde की definition क्या थी? t tilde of x is equals to limit of txn limit of xn x है dt में, so this limit of txn ही थी ना definition, हाँ,
सो टी स्टार एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टी एक्स लिख सकते हैं जनरली, क्योंकि डोमेन पे सेम वैल्यू दे रहा है टी, चाहे टी स्टार हो चाहे टी हो, दिस इज इक्वल सेम वैल्यू ना। सो ये इसकी एक्सटेंशन आ गई डोमेन पे, डोमेन की एक्सटेंशन है। सो टी टिल्डा इज इक्वल टू टी एक्स इज क्लियरली एन एक्सटेंशन। सो हमारे पास हमने क्या क्या प्रूव कर दिया, हमारे पास एक एक्सटेंशन है जो कि यूनिकली डिफाइन हो रही है, ठीक है। सेकेंड थिंग हमने प्रूव कर दिया कि वो लीनियर है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि वो बाउंडेड है प्लस नॉर्म वाली जो कंडीशन है। सो बाउंडेड यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्म ऑफ टी एक्स एन, टी हमारे पास गिवन था, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। सो नॉर्म ऑफ टी एक्स एन क्या होगा, नॉर्म ऑफ टी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एन लिख सकते हैं, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे। सो दिस वुड बी लिमिट ऑफ n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी टी एक्स एन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू लिमिट, राइट, दोनों तरफ से लिमिट अप्लाई की है। लिमिट ऑफ n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी नॉर्म टी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, एंड लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी एक्स एन क्या है, x। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बनी, नॉर्म ऑफ टी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट को हम अंदर लेके गए नॉर्म के, सो व्हाट वी वुड हैव इज limit n tending to infinity t of xn is less than equals to this। ये इक्वेशन बनी। नॉर्म ऑफ, हाँ नॉर्म नंबर आएगा ना, ये नॉर्म ऑफ टी एक नंबर है जो कि इंडिपेंडेंट है n के, राइट, n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, n के ऊपर सिर्फ सीक्वेंस डिपेंड कर रही है। सो नॉर्म एन ऑफ नॉर्म ये जो है ऑपरेटर t का, ये बाहर आ जाएगा। ओके, नाउ लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी t of xn, ये क्या था, y। So therefore what we have is norm of y is less than equals to norm of t into norm of x, right। y क्या था, t tilde x, यहाँ पे y was t tilde x, so therefore हमने इस वैल्यू को यूज किया। So we have that norm of t tilde x is less than equals to norm of t into norm of x। इसका मतलब क्या हुआ, बाउंडेड आ गया। बाउंडेड की डेफिनेशन क्या होती है, हमें एक कांस्टेंट रियल नंबर चाहिए, तो वो जो कांस्टेंट रियल नंबर है दैट इज नॉर्म ऑफ टी हियर, राइट। सो नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू सम सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स, और यहाँ पे सी क्या है, नॉर्म ऑफ टी। तो टी टिल्डा बाउंडेड आ गया। अब हमें सिर्फ शो करना है नॉर्म वाली प्रॉपर्टी। सो दिस इज norm of t tilde x, norm of t tilde x is less than equals to norm of t into norm of x, ये ऊपर से आया है, right। So this implies norm of t tilde x is upon norm of x। इस x को डिवाइड कर सकते हैं, x को हम नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, so x को हमने डिवाइड किया, what we would have is norm of t tilde x upon norm of x is less than equals to norm of t, right। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, नॉर्म ऑफ टी टिल्डा, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर कोई किसी ऑपरेटर का नॉर्म निकाल रहे हैं, दैट इज नथिंग बट सुप्रीमम x बिलोंगिंग टू dt एंड x इज नॉन जीरो, दिस नॉर्म ऑफ t टिल्डा अपॉन नॉर्म ऑफ x, यही होती है नॉर्म की डेफिनेशन, राइट। तो हमने जब इसका सुप्रीमम लिया, इक्वेशन नंबर मैं इसको डाल देती हूँ स्टार, ये जो स्टार इक्वेशन है, इसमें जब हम इस डेफिनेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर ये हर एक x के लिए होल्ड कर रही है स्टार इक्वेशन, दैट मीन्स सुप्रीमम ऑफ दिस वुड बी आल्सो लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म t, राइट। सो दैट मीन्स नॉर्म ऑफ t टिल्डा इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ t। ये क्लियर हुई इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 होल्ड कर रही है
हमें ऑलरेडी पता है कि टी टिल्डा एक्सटेंशन है, हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, एंड एक्सटेंशन है तो उसका नॉर्म जो है नॉर्म ऑफ टी से ऑटोमेटिकली बड़ा होना चाहिए, राइट। सो एक इनइक्वालिटी हमारे पास इधर से आ गई, एंड 2 और 3 जो है उससे क्या आया, नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी टिल्डा। अभी जो इक्वेशन 3 है जहां पे हमने लिखा है कि टी टिल्डा इज एन एक्सटेंशन ऑफ टी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्म ऑफ टी टिल्डा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू नॉर्म टी। ये वाली जो कंडीशन है ये क्यों होल्ड कर रही है, क्योंकि नॉर्म जो है सुप्रीमम के ऊपर डिफाइन किया है हमने, और टी स्टार एक्सटेंशन है, मतलब एक बड़े सेट के ऊपर है। तो बड़े सेट के ऊपर अगर हम सुप्रीमम डिफाइन करेंगे तो छोटे सेट के सुप्रीमम से तो वो बड़ा नहीं हो सकता ना, सुप्रीमम कैन नॉट डिक्रीज इन एन एक्सटेंशन, राइट। एक सेट हमारे पास मान लो हमारे पास है 1 2, जस्ट एग्जांपल के लिए दे रही हूँ, और एक सेट है हमारे पास 1 2 3। सो इस सेट को नाम लिया हमने बी, ये सेट है हमारे पास ए, राइट। तो क्लियरली जो है बी एक्सटेंशन है ए की, and supremum of B is always greater than equals to supremum of A. Why? क्योंकि एक्सटेंशन होने का मतलब ही क्या है कि सबसेट होगा, एंड सबसेट के ऊपर सुप्रीमम कैन नॉट डिक्रीज ना जब एक्सटेंशन ले रहे हैं। सो दिस इज द सेम लॉजिक। सो नॉर्म कैन नॉट, द सुप्रीमम कैन नॉट डिक्रीज इन एन एक्सटेंशन, तो इसका मतलब इक्वेशन 3 होल्ड कर रही है, एंड इक्वेशन 2 हमने ऑलरेडी प्रूव कर दी है। सो दैट इम्प्लाइज नॉर्म इज इक्वल। पूरी डेफिनेशन, पूरी इसको एक बार दोबारा से पढ़ो एंड फिर देखो कोई डाउट है कि नहीं है शुरू से। गिवन क्या है, एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर एक नॉर्म स्पेस में, y इज द बनाक स्पेस। बनाक स्पेस का यूज कहाँ हुआ है, जब हमने ये लिखा था कि y इज कंप्लीट एंड एक कॉशी सीक्वेंस है y में तो वो कन्वर्ज करेगी, राइट। यहाँ पे यूज हुआ बनाक का। देन बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर t का यूज कहाँ हुआ, ये शुरू में यूज हो गया था कॉशी सीक्वेंस प्रूव करने में। तो हमें क्या प्रूव करना था कि t के पास एक एक्सटेंशन है, हमने ये भी प्रूव कर दिया कि एक्सटेंशन यूनिकली डिफाइंड है, राइट। यूनिक एक्सटेंशन नहीं है, यूनिकली डिफाइंड है। सो इसको यहाँ पे आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि एक्सक्लेमेशन साइन जो होता है वो यूनिक का साइन होता है, राइट। सो यहाँ पे मैं जो ये एक्सक्लेमेशन लिख रही हूँ, दिस इज नॉट फॉर यूनिक, दिस इज फॉर यूनिकली डिफाइंड, राइट। एक्सटेंशन हमें बहुत मिल जाएंगी, दिस इज यूनिकली डिफाइंड जस्ट, राइट। हमने आगे प्रूव किया है कि हम दो सीक्वेंसेस लेंगे जो कि सेम एक्स को कन्वर्ट कर रही हैं, तब भी हमारी डेफिनेशन में चेंज नहीं होगा। सो हमने क्या लिया, पहले एक सेट लिया, एक पॉइंट लिया एक्स टी डोमेन डी टी क्लोजर में। हमें एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ दिखानी है, डी टी क्लोजर में ही दिखानी है ना, तो हमने एक सेट लिया डी टी क्लोजर में, एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से क्या हुआ, हमारे पास एक सीक्वेंस आ गई डी टी में जो कि कन्वर्ट कर रही है इस पॉइंट को, एक्सन को, एक्स को। सो दैट इम्प्लाइज वहां से हमने क्या डिराइव किया कि टी एक्सन एक कॉची सीक्वेंस होगी, राइट। एंड टी एक्सन अगर कॉची सीक्वेंस हो गई विच इम्प्लाइज ये कन्वर्ज करेगी y में, क्यों, क्योंकि y वाज कंप्लीट, बनाक स्पेस गिवन था। अगर टी एक्सन कन्वर्ज कर लिया तो हमने डिफाइन किया कि मान लो इसकी लिमिट y है, ठीक है। देन हमने ऑपरेटर डिफाइन किया टी टिल्डा बाय t tilde is from dt closure to y as t tilde of x is equals to y, या फिर हम इसको जनरली लिख रहे हैं द ग्रीन लाइन t tilde of x is equals to limit n tending to infinity t of xn, राइट। मतलब जो सीक्वेंस xn x पे कन्वर्ज कर रही है, so उस लिमिट ऑफ t xn हमने इसको डिफाइन किया t tilde x,
नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे एक बार ये जो क्लेम हम बोल रहे हैं कि ये यूनिकली डिफाइंड है, एक बार इसको छोड़ो, अगर इसमें डाउट भी है इसको छोड़ते हैं। तो हमने क्या प्रूव यहाँ पे क्या लिया कि हमारे पास एक ऑपरेटर है टी टिल्डा जिसकी वैल्यू गिवन है इससे टी टिल्डा ऑफ एक्स दिस, राइट। हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू इससे हम डिनोट कर रहे हैं टी टिल्डा ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ टी एक्स एन। इससे हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एक एक्सटेंशन आ गई, मान लो ये हमने प्रूव कर दी, ये हमने प्रूव करना है लीनियर, ये हम क्लियरली प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो लीनियरिटी एंड एक्सटेंशन क्लियर है, बहुत ट्रिवियल चीजें हैं ये। इसके बाद हमें क्या प्रूव करना था, लीनियर हो गया, एक्सटेंशन हो गया, तो बाउंडेड प्रूव करना था। बाउंडेड प्रूव करने के लिए हमने क्या यूज किया अगेन कि एक्सएन जो है एक्स को कन्वर्ट कर रहा है, सो देयरफॉर एंड ये लिमिट टी एक्सएन जो है ये वाई को कन्वर्ट कर रही है एंड वाई वाज नथिंग बट टी टिल्डा एक्स, सो देयरफॉर टी टिल्डा यहाँ पे बाउंडेड आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास क्या हुआ, हमने एक ऑपरेटर डिफाइन किया जो कि लीनियर है, एक्सटेंशन है, बाउंडेड है और ये नॉर्म वाली कंडीशंस होल्ड कर रहा है, राइट। अब हमें सिर्फ ये दिखाना था कि ये यूनिकली डिफाइंड है। यूनिकली डिफाइंड होने का मतलब जरूरी नहीं है कि जो दो सीक्वेंसेस हम अलग अलग ले रहे हैं सेम एक्स पे कन्वर्ट करती हुई, राइट। जैसे मान लिया हमने एक सीक्वेंस ली 1/n और एक सीक्वेंस ली 1/n² और 1/2n, इजी करने के लिए 1/n एंड 1/2n दोनों अलग अलग सीक्वेंसेस हैं, राइट, लेकिन दोनों जीरो पे कन्वर्ट कर रही हैं। तो सिमिलर चीज यहाँ पे अगर हम ये भी लेते हैं तब भी हमारी जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन दोनों सीक्वेंसेस से हम एक नेक्स्ट सीक्वेंस बना सकते हैं Vm x1 z1 x2 z2 टाइप की, जो कि उस जीरो को कन्वर्ट कर जाएगी, राइट। एंड Vm x को कन्वर्ट कर गया, दैट मीन्स TVm कन्वर्ट करेगा, राइट। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन है जो हमने अभी पीछे कोरोलरी में प्रूव किया था सीक्वेंशियल क्राइटेरिया टाइप्स का, राइट। सो TVm कन्वर्ट कर गया, दैट मीन्स इसकी सबसीक्वेंसेस भी कन्वर्ट करेंगी एंड सबसीक्वेंसेस वो TXN एंड TZN ये कन्वर्ट करेंगी और कन्वर्ट किस पे करेंगी, सेम लिमिट पे करेंगी, राइट। सो हमने यहाँ पे क्या दिखाया, बेशक हमारे पास दो अलग अलग सीक्वेंसेस थी, हम उनसे एक सीक्वेंस ऐसी बना सकते थे कर रही है सेम पॉइंट x पे एंड वो सीक्वेंस अगर कन्वर्ट कर रही है x पे, दैट मीन कि ये यूनिकली डिफाइंड हो गया। इज इट क्लियर नाउ? एक बार ये दोबारा पढ़ना एंड कोई डाउट हो सो अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूछ लेना, ओके। मैं ये अटैच कर देती हूँ। सो एनी डाउट? So I'm not. So let's end this class. हाँ हाँ, मैं नोट शेयर कर देती हूँ।